for another episode of our MindSpeak webinar on every Sunday. Today is a very auspicious day. We have Father's Day, the summer solstice, uh, the Yoga Day, and we have seen a very major Surya Grahan today, which is also falling on an Amavasya day. A large number of businesses have already opened lately, while many are trying to struggle back to bring their businesses to in the opening. In the past few months, we have observed that we are all going through some of our lives' most trying times, and we did not realize this almost that 3 months have already passed. Yet every cloud has a silver lining, and it is for us to see and find the opportunity behind these clouds. In our last webinar on 23rd of April on transformation of silver industry, we discussed many interesting issues. Yet there were many unanswered queries and too many questions. So we are back today with another webinar on silver, the new gold, the real game changer. And we have with us an illustrious panel who is going to discuss this in detail. To start with, we have Mr. Sanjay Agarwal, who is the convener of the silver panel at GJC and a board member of GJC also. His company, RV Agarwal, is in business of silver since many decades, and they are also in exports and sell silver in the domestic markets. He originally hails from Banaras. Then we have Mr. Rahul Mehta, who is the MD, Silver Emporium, and an IIMB alumni. The company has found fame for its intricate silver masterpieces. He relishes the challenge of scaling up while maintaining a firm grip over the quality and the craftsmanship of his products. Under his leadership and skilled team, the company has won several awards, got featured on the Rolls-Royce Coffee Table book, Manufacturer's World First Silver Bike, and has designed and manufactured many trophies for sports tournaments. His company has a setup facility of almost 40,000 square feet in Jaipur for handcrafted silverware and has a large team of skilled master craftsmen from across India. Being a member of the YPO, Mumbai Angels and others, Rahul gives opportunity to interact with global leaders, innovative thinkers from across the globe. And as a strategic investor, he has invested in almost 25 startups. Our young and dynamic Rahul has great dreams and is very ambitious. We also have with us on the panel Mr. Deepak Vora. The Vora family has been into manufacturing of silver and silver-plated products since 1882. They first supplied silverware to the British Army units posted in India, and then to the Indian royalty, and finally ended up sharing their goods with the Indian consumer. In 2001, the Vora started a brand called Episode to cater to the needs of the rich and the well-traveled Indian consumer. The Voras have also been in exports and have dealt with big brands like Armani, Ralph Lauren, Vera Wang, Lambert from Germany, John Lewis, El Corte Inglés from Spain, Bombay Company from the US, and Wallace Sterling, among many others. The Voras have combined modern technology and traditional silversmithing techniques to produce for volume buyers and even for the boutique customers. We have another senior person with us, Mr. Ramashankar Gupta. Mr. R.S. Gupta is a multifaceted entrepreneur with an experience in jewelry field of over 60 years from Agra. Mr. Gupta has directed the ACPL Group, India's leading silver chains and jewelry company, to achieve numerous awards to their credit. The group has been a pioneer of gold and silver chain manufacturing companies, employing over 3,000 skilled craftsmen and technicians. Mr. Gupta is a well-known and very respected personality
in the international jewelry industry and has a very sound and diverse views to build the silver sector. Mr. Prashant Jambad is another young and dynamic panelist. The Jambad started a jewelry shop under the name of Jambad Jewelers with a gold jewelry manufacturing unit also in Maharashtra in 2006. He had planned an organized jewelry manufacturing unit for the local market by setting up an MSME in 2006. He has a niche in manufacturing traditional 24 karat gold jewelry, which is native to the Vidarbha region of Maharashtra. Design and innovation are the heart of Jambad Jewelers. With this ever-changing world, he developed new designs and mechanical processes for the reduction in the cost of 24 karat jewelry manufacturing, which is very prevalent in Maharashtra. Their products have very good finish, accuracy, effective quality control, and with a minimum turnaround time from order to delivery. This is a process they have mastered. They've also received the Best SME Award for the unit, which is based in Akola. Employees are an integral part of the Jambad Jewelers. They have pension and other government benefits. He has empowered all his employees since the past 20 years with continuous training for the best finish, new products, and the enhancement of their skills. This panel is going to be moderated by our Mr. Avinash Gupta. Avinash ji hails from Hyderabad, and he also comes from a jeweler's family. He was very keenly involved with the capital markets when he ventured into Victorian jewelry in the 90s. He was a pioneer in this field, but as the Victorian jewelry market slowed down, he shifted to old style traditional gem-studded antique jewelry in gold. Within a decade, he made a position of his own in this space, and today supplies his jewelry to many large chain and jewelry stores. He has now decided to focus in retail from wholesale and that too in high-end silverware, objects of art, crockery and cutlery. Some of his collections I have seen in gold and silver are like museum pieces. Friends, this is a 90 minutes webinar, and we shall keep about 10 minutes for questions and answers. Over to you, Avinash ji. You are muted. Ashok bhai, you have forgotten to introduce our Nitin Khandelwal ji. He is also on the panel. I will introduce you. First and foremost, I'm extremely sorry. We have Nitin Khandelwal ji with us, and I think, how can I forget him? He should be the first to be introduced. He's the champion of our Mindspeak program. The past president of, immediate past president of GJC. Pioneer in the field of jewelry for over 100 years, based out from Akola in Maharashtra. His family has been uniquely involved in the development of so many different things in Maharashtra. He has been in various industries beyond gems and jewelry. And in the jewelry element, he has got 3 stores under the banner of Khandelwal Jewelers in Maharashtra. So I think I'm sorry now, and I hand over to you, Avinash. Good afternoon, friends. I'm really honored to be part of this esteemed panel, as all panelists have vast knowledge and rich experience in silver, and they have been striving really, really hard to make silver the new gold. I'm really thankful to Ashok bhai and team Mindspeak for providing me this opportunity to moderate such an important session. I feel silver will be the flag bearer of growth in coming times for our industry. The big potential and change silver can bring about is astounding. Silver is gaining ground across the globe because of 2 main drivers. First, it's precious, yet it's affordable. The democratic metal is well within everyone's reach.
Silver prices have stayed stable for a long time, but right now we are seeing 100 times lower than the price of gold, which usually is around 60. Second, silver is versatile. It correlates to our culture and traditions and is fashionable. Threadwear jewelry, which is an underlying lure for today's generation and is also fits into the slot of high-end designer jewelry, which is also an investment and a keepsake. India is a huge consumer and exporter of silver jewelry and silverware. We have seen a tremendous growth in last decade. Silver jewelry demand has grown from 700 tons in 2010 to 2200 tons in 2019. Silverware demand has grown from 500 tons in 2010 to 1300 tons in 2019. Simultaneously, investment demand has also grown from 800 tons to 1700 tons. Today, we should be very, very glad to say when we are talking about silver is our new gold. Today, the total demand in India stands at 7,800 tons, including almost 7,000 tons of import. We have seen a big jump in consumption. If we are going to deal with this intelligently with all players of the industry on one side and seeing the future clearly and bright, I am sure we will conquer the world with our craftsmanship and business acumen. Now, with this small intro to the silver part and towards today's session, I'm starting my first question and I will be putting to one of the senior most person, that is Mr. Gupta. And I want the inputs from Rahul also on this. Sir, to build any sector, we need to build trust. And trust comes with standardization of purities. What are the steps, according to you, should be taken to bring the standardization in purities so that we can get the entire trust in the entire value chain? I will put my first question to Mr. Gupta. I'm really grateful that you people have given me a chance to express my views. Before starting, I'll just tell you a very small story. When we started our silver jewelry first, I was by chance in America, in Dallas. I met a customer out there because it's very difficult to find a customer, to like ice breaking. And I went, he was Mr. Singh, some importers maybe of silver jewelry. And I said, I have come from India and we do some silver business. So he looked at me like a stranger. Then he said, Mr. Gupta, you are welcome. You are from India. So what can I do for you? I would like to show you my samples. So he said, Mr. Gupta, better, please don't open the bags because we don't trust Indian goods, You can have a cup of tea. If I can do anything for you, please let me know. So this was our reputation. So why I told you, in India, we really have a different kind of reputation. The biggest problem, supplier was going there and they never stick to their commitment. They never met the quality standards. They never delivered the goods in time. Sometimes they are wrong supply. But really, we are 5 brothers, all team together, and we thought that that instance now because we stick to in Agra itself there are a lot of people going low purity goods, and they are maybe 10 times bigger than us, but we stick to only 9 to 5. Now, as everybody knows that ACPL, people say if you want to buy quality goods, if you want to buy a good quality, you have to go to ACPL. So this is nutshell the story. I think because gold and diamond has become very, very expensive. Can I speak or I just want to stop No, here? let Rahul speak on standardization. Rahul, Okay. over to you. Okay. So thank you, Mindspeak team, for inviting me on this important seminar on silver.
So in Indian industry, the biggest problem is adulteration in silver which is sold across India. तो सबसे जो ज़्यादा important चीज़ है trust build करने के लिए चांदी की hallmarking, which has to be made compulsory. It would take some time for BIS to do that. Agar as a trader, as a supplier, as a retailer, we all can collectively take that effort and sell only standardized material. Now, what one big thing which can be done is educate consumer. So a well-educated or well-informed customer is the most important thing to bring a big change. When customers are aware about hallmarking, we should create right kind of communication which can be passed on to all the association, which can be put on social media. So all this would create the trust factor. When the customer goes to the retailers and asks, कि मुझे चांदी का hallmarking का ही सामान लेना है, so overall the industry will start changing over a period of time. ग्रेट। एक और इशू आता है जब हम स्टैंडर्डाइजेशन और ट्रस्ट की बात करते हैं, तो एक और प्रॉब्लम आती है टार्निश। सिल्वर टेंड्स टू टार्निश अ लॉट, और उससे क्या होता है कि कई बार एक थॉट कस्टमर के दिमाग में आता है कि ये प्योर सिल्वर है या नहीं है। तो इसके ऊपर मैं दीपक जी से पूछना चाहूंगा कि दीपक जी, आप मेरे को ये बताइए कि टार्निश का कारण क्या होता है और टार्निश नहीं होने के लिए हम क्या कर सकते हैं? Actually, तो काफी लंबा टॉपिक है, but essentially I'll tell you a little bit of little background is that when we opened a showroom after almost 2.5 months, and in our showroom there's no poly bags being used to display products. Products are displayed openly. We did not find one single piece which are tarnished. So there has to be something to our pieces, and I think that it's the lacquer that we've tried. We've experimented a lot with lacquer, food-safe lacquer, that has ensured that not a single piece, and maybe about 3,500 pieces that were displayed there, not a single piece are tarnished. And lacquering is technology plus lacquering is an art. I think that a lot of people have tried lacquer and they found that the pieces become dull. They lose their gloss. We've succeeded in doing that, and we're open to telling anybody how to do it. ग्रेट। सो बेसिकली टेक्नोलॉजी के साथ में हम इसके ऊपर भी कॉन्कर कर सकते हैं। Absolutely. Absolutely. Yes, sir. Lacquer is. You are saying standardization you can bring about by hallmarking. So are you wanting the government to compel you to hallmark, or do you want to go to the industry and say that let us all get together and hallmark our jewelry? Always, Ashok bhai, I personally feel it should be a voluntary call from the industry rather than putting a pressure from the government side. If the industry groups up and do things, it will be always a better way of building trust in the industry. So I think the most intelligent thing is that one should not go to the government and say that while you are going to make gold mandatory hallmarking, why don't you consider doing it with silver also? I think mandatory is not the right way of doing any trust building exercise. So I think it should be voluntarily from the industry for the industry. So from the industry, who will be the ideal person who can start with top quality? मेरे हिसाब से आज जो industry stalwarts यहाँ पे बैठे हुए हैं, if they appeal to the industry and they show the way to the industry, it will be better. I think I think one major thing is that if the manufacturers of silver products start hallmarking and delivering, the problem stops here. Don't wait for the retailer to hallmark. What do you say, Rahul? So in India, the biggest problem is जो manufacturer है, जो कारखाने हैं, those are all small units. There is no large scale manufacturing which is happening at one unit. Basic training which is required for them to have the right kind of hallmarking, what kind of alloys needs to be, those needs to be trained. Now, when we look at the retail side, a lot of retailers across India,
their choice is, by choice they don't want to sell 925 hallmark. तो जब तक वो चेंज नहीं होंगे तब तक बेचारा मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? There are some manufacturer, उन्होंने तो बोला नहीं मैं 925 के बिना बेचूंगा ही नहीं, पर काफी रिटेलर बोले नहीं मुझे तो कम का ही चाहिए, आपको मेरा जो कस्टमर है वो कम मजदूरी मांगता है, मैं वो रेट पे माल नहीं बेच सकता, मुझे कम प्योरिटी का चाहिए. Now this gives a lot of opportunity for those kind of retailers and manufacturers to manipulate on the purity. When they say 80, it will come to 70. So there is a huge gap in terms of this opportunity which retailers get and the manufacturers get to take the advantage. I think it's a very, very deep subject. We have faced this problem 20 years ago in gold, and I know how difficult it was in gold. But only those people who really got in gold, hallmarking successfully became big players. Mr. Gupta, no, I think if the industry group up, Ashok bhai, and the bigger players start saying that we will not manufacture anything below 925, I think a lot of things will change, and absolutely. It will definitely change the moment a movement starts. So I think that will be taken up by all the stalwarts sitting over here, and definitely in future we will see the growth what we have seen in gold, in hallmark jewelry being sold simultaneously. I think we are not far away in silver also. मेरा इसमें एक पॉइंट भी था अविनाश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर इसमें जैसे सिल्वर जो है ना, जो गोल्ड और सिल्वर में क्या फर्क है कि सिल्वर जो जैसे यूटेंसिल्स या इस तरह के जो आइटम्स हैं वो गिफ्टिंग में ज्यादा जाते हैं, और उसमें जो गिफ्ट देने वाला आदमी है वो उसको सस्ते में चाहिए और दिखने में बड़ा भी चाहिए, फिनिशिंग भी अच्छी चाहिए और उसको गिफ्ट दे देना है. तो वो जो उसकी मेंटेलिटी है, मैं उस मेंटेलिटी की बात कर रहा हूँ, उस एंड कंज्यूमर की मेंटेलिटी. जैसे राहुल ने बोला कि जो रिटेल कस्टमर है, वो मैं राहुल की बात का समर्थन करता हूँ कि रिटेल कस्टमर क्यों आपसे लो प्योरिटी मांग रहा है, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग कम पड़ रही है. हाई प्योरिटी मांगेगा, 925 मांगेगा तो उसकी कॉस्टिंग बट ऑब्वियसली ज्यादा पड़ेगी और वो जो एंड कंज्यूमर है वो लेने में कतराएगा. तो अगर हम उसको मैंडेटरी हॉलमार्किंग की तरफ अगर हम फोकस करते हैं और हम गवर्नमेंट से ही उसका नियम लेके आते हैं कि नहीं ये हॉलमार्किंग होके ही बिकना चाहिए, तो उसमें ज्यादा वो सक्सेस हो पाएगा, ऐसा मुझे लगता है. Great, sir. I have taken up this issue and I'm happy that we could discuss in so much of depth. Now I'm moving to my second question, which will be to two stalwarts again. नितिन जी और दीपक जी को मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं. आज कोई भी इंडस्ट्री की ग्रोथ के अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है मार्केटिंग, और ब्रांड बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज अ इंडस्ट्री एंड एज अ कंपनी. तो आज मैं दोनों से पूछना चाहूंगा कि मार्केटिंग की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ब्रांड बिल्डिंग की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिससे कि चांदी एज अ इंडस्ट्री और कंपनी जो चांदी का काम कर रही है दोनों की ग्रोथ हो सके. मैं पहला क्वेश्चन चाहूंगा, पहले आंसर देने के लिए मैं दीपक जी को बोलूंगा और उसके बाद में मैं नितिन जी के पास में जाऊंगा और एक उसके पॉइंट में ऐड करते हुए. Thank you, Ji. I think that marketing has to be based on building brands. The old normal of taking silver, putting it on the weighing scale and saying, "Bhai, itna rupees label, itna silver," and that's it. That will not work anymore. At least I don't see a major future for that. Rolls Royce बिकती है, BMW बिकती है, Audi बिकती है, Maruti भी बिकती है. They are brands, and people ask for those brands. Similarly, I think that silver maybe there'll be a new normal will be brands, and to make a brand, normally it's a tedious process, but there are ways to shorten that. I mean, the common sense factors say about purity maintenance, about quality maintenance, about design. Now, design is very, very crucial, and India has so many design institutes that we all have to invest in that. There's no choice. There's no escaping that. I mean, the traditional thing जो अपनी grandmother की cupboard से खोला और poly bag में लिपटा हुआ एक tea set मिल गया, एक lemon set मिल गया, और कुछ coins मिल गए. That kind of designing will change, because we must realize that the consumer's age has reduced. The money is now with the 25 to 45 and not with the decision making to buy that is that. And that age group is not interested in maintaining and
and buying something which is available everywhere. They want something different. They want a design. Otherwise, we will lose this customer base, which is the growing base now. That customer is more interested in buying his laptop and more interested in buying his iPhone and more interested in buying his whatever, you know. And that customer ko brand jab ban jata hai, to then that customer is attracted. At episode, we have seen that the age group of our customers, of our existing customers, has already reduced, and we find more of 35 to 45-year-old coming in than the older age group. So brand building is important. I mean, and it is expensive, the process, but there can be ways of doing it. You have to have a good PR agency concept. Your influencer marketing has to be done. Influencer marketing can be expensive because celebrity costs are expensive. But then 3-4 people can get together or 2 people can collaborate, which is the order of the day. Collaborate and do influencer marketing, content marketing, both web and for retail sales. That's very, very important. We have to consistently use tools like AR and VR, and therefore go on emails and on WhatsApp and various other social media platforms. Marketing is very, very essential, and of course, in the long run, it is the factor that is the quality and the purity and the reputation of the seller, which is very important. Now, Rahul is listening here very intently, and I can tell you that he is so well known in the trade in this business. Gupta ji, who spoke a bit before this. I mean, if I have to buy a chain, silver chain, I will go to ACPL. For me, it's not silver. For me, it's ACPL. देखिए मेरा ख्याल है कि हॉलमार्किंग नहीं चल सकता, स्पेशली ज्वेलरी नहीं चल सकता। आइटम्स आर वेरी चीप, हमारी चेन बिकती है, लेबर होती है गुप्ता जी 5 रुपए 6 रुपए ग्राम, तो उसमें हॉलमार्किंग इज नॉट कन्वीनियंट। In jewelry maybe, but not in silverware. Yeah, silver. Logistically. वो म्यूट हो गए। या दीपक जी, आप अपने क्वेश्चन से कंटिन्यू कीजिए ऑन दी मार्केटिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग। गुप्ता जी, अपन हॉल मार्किंग के ऊपर फिर से आते हैं, बाद में जब डिस्कशन में आएंगे तब अपन हॉल मार्किंग के बारे में बात करेंगे। गुप्ता जी आप म्यूट भी है वैसे। So दीपक जी। हाँ जी। So what I'm trying to say is that silverware will not, in the future, in the foreseeable future, not be selling as a commodity. It has to sell as a brand. And to build brands, we need to follow some basic rules that I've just mentioned before. And the question is that once we build quality level, we build a level of design level, how to communicate to that customer. Communication is very, very expensive. Putting 3 ads on newspaper is costly, or 5 ads or 10 ads, because 1 ad will not make a difference. So Deepak ji, I don't want to go into the details of the advertisement in the newspapers and all. Basically, we need to discuss what should be our strategies to build the brand industry silver and individual brand. For example, like say episode today, if say Sanjay Agarwal ji wants to create his own brand of RV Agarwal, what could be the strategies he could adopt? I'll differentiate 2 kinds of brands in this case. One is a family brand, and which is there with so many of us here, and other is a brand, which means that anybody doesn't ask for a Bora Silver or ask for an episode brand. It's not related to the family directly. Then also the advantage is that at any stage I've been receiving offers from people to buy the brand also. That's also another plus point. So now the strategies could be several. I mean, the strategy has to be a marketing strategy basically, besides the essential elements of having a quality, having a trust factor in you, having a design factor, how to communicate this to build your brand. And consistency is very important also. And how to communicate is basically what I had mentioned, is that you work through PR agencies or you work through sponsoring of events. For the industry also, Silverware Association can say that we will sponsor this World Cup trophies.
I mean, you can't sponsor So, the world. so we need to create a buzz in the world that Yes. we are here as a brand. Yes, absolutely. And there Industry. are several Yeah. techniques. It will take very Great. long to answer. Great. Now I will move to Nitin Bhai on this particular thing to take forward. Nitin Bhai, you hail from tier 2 and tier 3 cities. You have a lot of stores in that particular places. आज आप मेरे को ये बताइए, जब आप अकोला जैसे शहर में आप जब सिल्वर बेचना चाहते हो तो सबसे पहला दिमाग में इंसान जैसे ही सिल्वर बोलता है तो वहां पे क्या चीज दिमाग में आती है, और आज खंडेलवाल सिल्वर को क्या क्या चैलेंजेस देखने पड़ते हैं या उसको बिल्ड करने में आपने क्या क्या किया है, थोड़ा सा आप इस पे हाईलाइट कीजिए। देखिए अविनाश जी, पहले तो मैं अशोक भाई के पास जाऊंगा। अशोक भाई ने मेरा परिचय नहीं दिया तो मैं थोड़ा प्राउड फील कर रहा था कि मुझे परिचय की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लेकिन अगर परिचय अभी भी देना पड़े तो समझ लो अभी तरक्की दूर है। तो ऑन राइटर नोट, मैं बहुत स्टॉलवर्स लोगों की बात सुन रहा था और मेरी सिल्वर की स्पेशली 3 शोरूम है, लेकिन फ्रैंकली एंड वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग माइंडस्पीक आने के पहले मैं सिल्वर की तरफ ध्यान नहीं देता था। दो आई एम हैविंग द सेपरेट शोरूम इन द सिल्वर इन द नेम ऑफ खंडेलवाल सिल्वर अपार्ट फ्रॉम द खंडेलवाल ज्वेलर्स आल्सो। लेकिन जब से माइंडस्पीक के अंदर हमारा माइंड ओपन हुआ और स्पीक करने लग गया है, उसके बाद मैंने कुछ नोट्स बनाई है और नोट्स बनाने के बाद में इम्प्लीमेंट करने के लिए समय नहीं मिला। मैं थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को आज जो इतने स्टॉलवर्ड में इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, जो मुझे आपने पूछा उससे आपके परमिशन से। अविनाश जी प्लीज। कंडीशन ऐसा है कि मैं जब देख रहा था और हमारे एरिया के अंदर तो देखिए कि विश्वकर्मा ज्वेलर्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा खामगांव में। मैं भी बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर था, लेकिन फैमिली सेपरेशन के बाद में मेरे बड़े भाई के पास में वो मैन्युफैक्चरिंग चले गया और हम लोग अच्छा मैन्युफैक्चरिंग करते बड़े लेवल के ऊपर यूटेंसिल्स। और खास करके आप लोग तो 92 की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो ट्रेडिशन है अकोला खामगांव में 100% प्योर। आज भी हम लोग 999 सिल्वर की यूटेंसिल्स बनाते हैं। और पायल जब 50 टन के ऊपर नहीं मिलती थी तो मैं खुद 25-30 साल पहले हुपरी गया था और मैंने वहां पे उन लोगों को बोला कि मुझे मिनिमम 85% की पायल चाहिए हुपरी के अंदर। आप सरप्राइज होंगे, उसने मुझे वेस्टेज जो है वो 4% बढ़ा के दिया था। उस समय 12 वेस्टेज में पायल मिलती थी, अब तो 6, 7, 8 में मिलने लग गई। तो मैंने जब सिंपली पूछा उसको कि क्यों इतना ज्यादा वेस्टेज लग रहा है मुझे, तो उन्होंने बताया कि सर हम 10 किलो चांदी में 20 किलो प्रोडक्शन करते क्योंकि 50% की पायल बनाते हैं। आपके लिए हम लोगों को 85% का मिक्सचर बनाना पड़ेगा और जिसके लिए हमको चांदी का उभार भी डबल लगेगा। तो प्यूरिटी माल परचेस करने के लिए मुझे पहले तो महंगा करना है, उसके ऊपर से मुझे वेस्टेज भी ज्यादा देना पड़ा क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट बड़ा हो रहा था। तो ये एक चैलेंज बहुत बड़ा था प्योर माल बेचने के अंदर। और आज भी हमारे एरिया के अंदर, जैसा मैं पुराने नाम सुनता था डेरे वगैरह, आज भी 100-150 साल पुराने नारायण मनोहर की अगर आप देखेंगे जो 300 साल पुराने हैं, आज भी यूटेंसिल्स और 0.99 there is a lot of noise from your side. तो 999 का चलन हमारे इधर आज भी है। तो सिल्वर सेल के लिए हमारे पास में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे जो स्टॉलवर्स है, दीपक जी है, गुप्ता जी है और सब लोग हैं, मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट की हमारी बात चल रही थी, सोशल मीडिया की बात कर रही थी। सर मैंने कलेक्टिव एड भी देखी है और मैंने इंडिविजुअल एड भी देखी है, चाहे वो गुरु पुष्य हो, दसरा हो, दिवाली हो, धनतेरस हो। आदमी सिर्फ सोना, डायमंड, प्लेटिनियम इसकी एडवर्टाइजमेंट करता है और मैंने कभी भी देखी नहीं कि एक्सक्लूसिव सिल्वर्स की एड। इवन जो झिलो सिल्वर के नाम से जाना जाता है, जैसा कि मोमेंट्स के प्रोडक्ट है, आप देखिए उसकी एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, बैनर्स, सोशल मीडिया प्रेजेंस और साथ साथ में आप उनकी अगर पैकिंग देखेंगे तो कोई डायमंड वाले भी ऐसा पैकिंग नहीं करता जो झिलो सिल्वर जिसको बोलते हैं प्लेटिंग वाली, वो लोग उसी हिसाब से आए हैं। इतने कम समय में उन लोगों ने जो उस टाइप का प्रोडक्ट है उन्होंने मार्केट को कैप्चर कर लिया जिसमें सिल्वर है ही नहीं। तो मेरा एक सिंपल सजेशन है, और मैं सिर्फ सजेशन नहीं देता हूँ, अशोक भाई से हम सीखे कि लीड बाय एग्जांपल। आफ्टर दिस पैंडेमिक ओवर मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं सब लोगों को इकट्ठा लाऊंगा और सिल्वर के अंदर मैंने राहुल से भी बात किया, संजय से भी बात किया और हम सब जने मिलकर कलेक्टिव एफर्ट्स करेंगे। दैट इज माय प्रॉमिस टू दिस फोरम कि हम करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग एक मैं 2-4 दिन पहले ऐड देख रहा था, आज तक के एक की ऐड आती थी अंडे की, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अभी रेडियो के ऊपर ऐड आ रही है चिकन की कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप चिकन खाइए। वो किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे, वो पूरे इंडिया में चिकन सेल की बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी, यहाँ पे काफी लोग जैन लोग हैं। तो हम लोग सिल्वर जैसे चीज का आज तक के कोई ऐड नहीं बनाया।
अभी मैं माइंड स्पीक से मैंने सीखा है, खास करके हेमंत भाई को धन्यवाद दूंगा कि स्टोरी बिल्ड करना चाहिए आप लोगों ने ज्वेलरी को अच्छे दाम मिलने के लिए। जैसा अभी दीपक जी बता रहे थे कि आपको अगर ब्रांड बनना है तो आपको, तो स्टोरी की बात हमने आज तक नहीं करी। आज सिल्वर में इतना पोटेंशियल है, सिल्वर के इतने हाइजीनिक यूज है, सिल्वर का पूजा में इतना यूज है। कोई भी मंदिर हिंदुस्तान के अंदर आज तक के नहीं देखा कि जो स्टील या सोना यूज करता है, खास करके पूजा करने के लिए। 2-4 मंदिर छोड़ा तो अपने आप में एक प्रचार है, वो लोग सिल्वर करते हैं। क्यों सिल्वर करते हैं? हमको इसके ऊपर स्टोरी राइटअप शुरू करना चाहिए, और हमारी स्टोरी जाना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, हमारी स्टोरी जाना चाहिए सोशल मीडिया, हमारी स्टोरी जाना चाहिए न्यूज़पेपर के अंदर। और ऐसा हमने अगर कलेक्टिव सबने किया, तो जब तक के कस्टमर की डिमांड नहीं निकलेंगी तब तक हमारी डिमांड नहीं होंगी। और मैं दीपक जी और खास करके गुप्ता जी, आप लोग बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं, राहुल है जो बहुत यंग है, डायनेमिक है, इन लोगों से गुजारिश करूंगा कि आज तक के हमने सब टाइप के B2B एग्जीबिशन देखे। गोवा में डायमंड का होता है, PMI होता है, सिल्वर का हमने आज तक के B2B एग्जीबिशन नहीं देखा है। नितिन भाई इसके ऊपर अपन आगे आते हैं। अभी आपने जो बात की थी स्टोरी राइटिंग और स्टोरी टेलिंग की, उसी के ऊपर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। डिजाइन और थीम ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं या कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर मैं ओपिनियन चाहूंगा राहुल भाई का और गुप्ता जी का, कि जब हम कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करने की बात करते हैं या डिजाइन के ऊपर सोचते हैं तो थीम कितना इंपॉर्टेंट होता है, और डिजाइन और थीम जब आ जाती है कोई प्रोडक्ट के अंदर तो वो प्रॉफिटेबिलिटी को कितना इफेक्ट करता है और प्रॉफिटेबिलिटी को कितना इंप्रूव करने के लिए वो काम करता है। मैं गुप्ता जी से और राहुल भाई से दोनों से भी अपना अपना ओपिनियन चाहूंगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। So I will start first. Yeah. No. Actually, मेरा इंटरनेट थोड़ी देर के लिए कुछ गड़बड़ हो गया था। Can you repeat your question, please? या मैं ये बोल रहा हूं कि डिजाइन और थीम कोई भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए और प्रमोट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज जैसे डिजाइन और थीम के बेस के ऊपर जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो हम एक रिटेलर की और मैन्युफैक्चरर की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी अफेक्ट करता है। तो ये दोनों का कितना इंपॉर्टेंट रोल है जिससे कि आज सिल्वर इंडस्ट्री को हम प्रमोट कर सकते हैं और उसको ग्रोथ की तरफ लेकर जा सकते हैं। इस पॉइंट के ऊपर मैं आपकी और राहुल भाई की ओपिनियन चाहूंगा। देखिए, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, क्योंकि एक्सपोर्ट में तो हमारे ज्यादातर कस्टमर हैं वो लोग थीम पे ही जाते हैं। जैसे मदर डे का थीम है या उसका वैलेंटाइन डे का है। इंडिया के लिए ये सब प्रचलन है नहीं, तो इसके लिए हमें थोड़ी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। इट्स ए गुड आइडिया। और थीम बेस्ड ज्वेलरी हम बना सकते हैं, लेकिन जैसे ये आप देखिए हमारा जो ज्वेलरी बिजनेस है खासकर, वो जिन लोगों के हाथ में है, दे आर वेरी स्मॉल होलसेलर्स एंड दे आर बिजी इन सेलिंग ऑल रबिश फ्रॉम चाइना हियर एंड देयर। तो प्रॉब्लम ये है कि कोई सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम लोग डायरेक्ट रिटेल में पहुंच सकें। लेकिन अब वो चीज एक ब्रांड की, आई विल कम बैक टू दिस, एक बड़ा अच्छा में कॉमन ब्रांड बनाए। जैसे क्या है कि उसमें जितने मैन्युफैक्चरर चाहे मेंबर बन जाए, और वो ब्रांड में वी मेक ए पब्लिसिटी इन द टीवी, वी कैन मेक ए पब्लिसिटी इन द न्यूज़पेपर, और लोगों को बताएं कि भाई आप जो है प्लीज मेक श्योर यू बाय करेक्ट प्योरिटी, करेक्ट यू नो। तो एक कॉमन ब्रांड पे, क्योंकि आजकल हम लोगों ने बड़ी कोशिश करी थी किसी और प्रोडक्ट के लिए, करोड़ों रुपए चाहिए ब्रांडिंग के लिए, इट्स नॉट इजी। अगर 20, 25, 50 मैन्युफैक्चरर्स जो 9 to 5 का अच्छी क्वालिटी का माल बनाते हैं, वो एक कॉमन ब्रांडिंग में जाएं और वो ब्रांड हम पब्लिसिटी कर सकते हैं। और इट्स अ वेरी गुड स्लोगन लाइक गोल्ड सिल्वर इज न्यू गोल्ड, सम काइंड ऑफ नेम कैन बी क्रिएटेड, और उसके लिए कोशिश की जाए, तो दैट विल बी मच बेटर। ग्रेट सर। हम उसको एज ए क्वालिटी करके, एज ए ब्रांड करके बेच सकें। राहुल भाई, योर व्यूज ऑन माय क्वेश्चन प्लीज। तो डिजाइन जो है, डिजाइन प्लेज अ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है B2B मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स के लिए। जब कोई मैन्युफैक्चरर और होलसेलर नई डिजाइन इंट्रोड्यूस करता है तो द मार्जिन लेवल्स गोज अप, गेट्स अ प्रीमियम फॉर दैट। तो हम लोग इतने साल से हम लोग एज ए सिल्वर एम्पोरियम में हम लोग भी काफी चीजें रेगुलरली कोशिश कर रहे हैं। आपकी अच्छी डिजाइन का आपको लोग प्रीमियम जरूर देते हैं। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन। आज काफी मैन्युफैक्चरर होलसेलर्स के इन हाउस डिजाइन टीम नहीं है, तो एक डिजाइन टीम एक इंटीग्रल पार्ट हो गया मैन्युफैक्चरर के लिए। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, यू आर नॉट एबल, यू वोंट बी एबल टू कम्पीट विद अदर।
सेकेंड चीज, एक हम लोग ने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया था लास्ट से 6 या 7 साल पहले, मैं जो थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा बिकॉज दैट विल गिव अ लॉट ऑफ आइडियाज टू एवरीवन। जो हम लोग ने मास्टरपीस का कलेक्शन के जो स्कल्पचर्स हम लोग बनाते हैं, आज वो डिजाइन से लेके एग्जीक्यूशन का टाइम है 6 महीने से लेके करीब करीब जाता है 1.5 साल तक। एंड पीपल आर रेडी टू पे एडवांस एट द डिजाइन स्टेज एंड वेट फॉर 1.5 year to get that piece delivered. So that is the importance of a good design, and if you deliver that consistently, people trust you and they are ready to wait for that piece. Great. How much? ठीक है, design is one part. Now the other part is execution. What you have rightly said, with the design and the theme and the finish, that is where the consistency and the branding and the industry image will make a huge difference. That is where I wanted that answer from you guys, because that will inspire everybody to work on this particular aspect rather than putting on just the design or something like that. इसी को मैं आगे लेके जाते हुए मैं ये पूछना चाहूंगा संजय भाई से कि जैसे ही हम सिल्वर का नाम लेते हैं हिंदुस्तान में, सबसे पहला दिमाग में आता है सिल्वरवेयर, दूसरा आता है पायल और तीसरी आती है छोटी मोटी ज्वेलरी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो चांदी के अंदर बनती भी है और मार्केट भी होती है, लेकिन आज भी हमारे देश में उतना उसका रोल अभी भी ओपन नहीं हुआ है। तो ऐसी क्या चीजें हैं? मैं संजय भाई आपसे जानना चाहूंगा, नितिन भाई आपसे जानना चाहूंगा इस बारे में कि आपको ये इस चीज को आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं सिटिंग इन अकोला, और राहुल भाई आप से भी मैं ये ओपिनियन चाहूंगा कि व्हाट आर द अदर एस्पेक्ट्स व्हिच यू वांट टू टेल टू द पीपल बियॉन्ड दिस दे कैन डू। संजय भाई आपसे। नहीं, जैसे कि चांदी का नाम लो, चांदी के यूटेंसिल्स हैं या सिल्वरवेयर है या चांदी की जो ज्वेलरी है, चाहे वो ट्रेडिशनल ज्वेलरी हो या 9 to 5 ज्वेलरी हो, वही ध्यान में आता है। उसके अलावा जैसे चांदी के फर्नीचर हैं, अब चांदी के जो फर्नीचर हैं वो जैसे लोग कॉस्टली फर्नीचर जो इम्पोर्टेड फर्नीचर्स आते हैं बाहर के, वो लोग लाखों रुपए के परचेज करते हैं। तो एक बार मैंने अपने वीडियो में भी कहा था कि लोग उस फर्नीचर्स को परचेज करने से अच्छा है कि उसके कंपैरिजन में सिल्वर के फर्नीचर परचेज करें। और सिल्वर के फर्नीचर परचेज जो इंडिया में बने हुए हैं, वुड के ऊपर बनते हैं या जो पूरे सिल्वर के बनते हैं, उस तरह का वो लोग अगर फर्नीचर परचेज करते हैं और उसको लोग अपने यहाँ लगाते हैं, और समझो कि बाद में अगर उसको चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो उसमें उनको सिल्वर की जो वैल्यू है, जो वैल्यू एप्रिसिएशन है, वो भी उनको मिलती है, और उनका जो वैल्यू एप्रिसिएशन में उनकी जो वेस्टेज और जो उनकी लेबर है वो कवर हो जाती है, और इस तरह से वो उसको चेंज कर सकते हैं। और सिल्वर को एक जो आज हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, उनका जो सपना है मेक इन इंडिया का, उसमें भी वो सक्सेस हो सकता है। तो एक सिल्वर फर्नीचर लोगों के ध्यान में नहीं आता है, बहुत कम ध्यान में आता है। उसके अलावा जैसे आपने कहा तो सिल्वर कॉइन्स जो है वो एक फील्ड ऐसी है जो मतलब जब लोग नाम लेते हैं चांदी का तो कम ध्यान में आता है, लेकिन सिल्वर कॉइन्स भी बहुत बड़ी फील्ड है, और वो गिफ्टिंग में कॉइन्स आती है, और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है कॉइन्स का वो सिल्वर वेयर और सिल्वर पायल से बहुत ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिल्वर कॉइन्स एंड सिल्वर फर्नीचर, ये दो फील्ड अनएक्सप्लोर्ड है। ओवर टू नितिन भाई। नहीं, मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, काफी सारे वास्तु से लेके तो जो अपनी स्टोरीज होती है उसके अंदर काफी सारी चीजों में सिल्वर के बारे में बताया जाता था। आजकल की जो न्यू जनरेशन है, जैसा कि यंगेस्ट क्राउन इंडिया के अंदर है, लेकिन उन लोगों को ये स्टोरी अभी पता नहीं है। हम लोग जैसे ही इंटरनेट से या व्हाट्सएप से या सोशल मीडिया से अपलोड करेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ द सिल्वर यूटेंसिल्स, तो वो लोग समझ पाएंगे कि सिल्वर के अंदर आज तांबा पीतल वाले ऐड करते हैं, तो अगर हम सिल्वर के यूटेंसिल्स को उसमें प्रमोट कर सकते हैं। अभी जैसा कॉइन्स की बात चल रही थी, गिफ्टिंग के अंदर कॉइन्स बहुत बड़े प्रमाण के अंदर चलते थे, थोड़ा सा चलन कम हो गया था। और जो वर्कमैनशिप मैंने आज के 25 साल पहले पर्थ मिंट की देखी थी, जो आधा किलो और 1 किलो के जो बड़े कॉइन आते थे, उस समय क्या लेबर लेते थे लोग, जितनी सिल्वर थी उतनी लेबर लेते थे। लेकिन आज भी, आई एम सॉरी अगर किसी के पास होंगी तो माफ करना मुझे, लेकिन जो वर्कमैनशिप थी पर्थ मिंट की जो आती थी, वो सिल्वर की अगर हम आज भी अगर क्रिएट करते हैं उस लेवल की अगर वर्कमैनशिप, तो मुझे लगता है कि हम फिर से सिल्वर को प्रमोट कर सकते हैं। और जब तक कि हम एंड कंज्यूमर तक के नहीं जाएंगे कि सिल्वर यूटेंसिल्स लेने का फायदा क्या, सिल्वर पहनने से उसको क्या फायदा होता है,
काफी सारे स्टोरी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि बिछिया क्यों पहनाई जाती है शादीशुदा लड़की को। शादी होती तो सबसे पहले बिछिया क्यों पहनाई जाती है, वो बिछिया पहनाने से उसका अर्थ से कनेक्शन होता है और उसके बाद में उसके बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होते हैं और उसके अंदर उसको लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं, ये सब के पीछे बहुत सारी स्टोरी है। लेकिन मैं यहाँ जो स्टॉलवर्स है, खास करके गुप्ता जी है, दीपक भाई है और राहुल जी है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेहता एम्पोरियम वाले ये भी दिख रहा है जिनका सिल्वर के अंदर बड़ा नाम है। ऐसे सब लोगों को एक जगह आना पड़ेगा, स्टोरी के लिए किसी एजेंसी को लेना पड़ेगा, उसको स्टोरी टेलिंग करना पड़ेगा, तो हम इसका बहुत बड़ा कर सकते हैं। एक मेरा सजेशन है आज के फोरम से, मुझे पता नहीं होता कि नहीं होता, हमने अगर एक सिल्वर डे साल भर में बनाया, हमको अभी इंटरनेशनल लेवल तक जाने की जरूरत नहीं, रजत दिन या सिल्वर, तो हम अगर उसको कोई मनाते हैं और उस दिन से हम उसका कोई प्रचार करते हैं और हम सब जने मिलकर एक डे बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि उस दिन हम काफी सारे इकट्ठा आके कोशिश कर सकते हैं। तो क्यों ना हम एक सिल्वर डे और रजत डे मनाए जो हमारी इंडस्ट्री को एक अलग दिशा में ले जा सकता है। राहुल भाई। तो नितिन जी, जो आपने ये प्रश्न पूछा था कि चांदी की जैसे यूटेंसिल्स और ज्वेलरी ही, जब चांदी की बात करते हैं दो चीजें अपने दिमाग में आती है। काफी कुछ अलग बहुत सी कैटेगरी जो हम लोग काफी टाइम से डील कर रहे हैं, एंड जो स्कोप है, जो स्कोप और बिजनेस है और वैल्यू एडिशन सब वेरी वेरी हाई। जैसे आप बोलो स्कल्पचर्स, आर्ट पीसेस फॉर होम डेकोर, वॉल पेंटिंग्स इन सिल्वर, अभी एक हार्डवेयर फिटिंग्स फॉर क्लचेस, एक्सेसरीज, हम लोग ने स्विच बोर्ड बनाया हुआ है चांदी में। तो देयर आर मेनी मेनी अनएक्सप्लोर्ड कैटेगरीज। जो चीज आप अपने कस्टमर को सुनिए, उनसे समझिए और डेवलप करिए। चांदी में जितना स्कोप है कैटेगरी एक्सपांशन का, मुझे नहीं लगता कोई और दूसरी कैटेगरी में। बात करते हैं चांदी की फर्नीचर की, आज अपन पुराने फर्नीचर, आज भी ओपन ट्रेडिशनल पे मोस्टली जितने इंडिया में फर्नीचर बिक रहे हैं मेजोरिटी सब ट्रेडिशनल पे अभी भी स्टिक हुए। मगर आज सबके घर चेंज हो गए हैं, सबके कंटेम्प्रेरी हाउसेज आ गए। कैसे हम वो फर्नीचर को नए कंटेम्प्रेरी हाउसेज में रिलेट कर सके, उस टाइप से डिजाइन बना सके, वो चीज पे काम करेंगे तो बिजनेस और ये कैटेगरी बढ़ाने का स्कोप अनलिमिटेड है। राहुल, अभी नितिन जी ने बोला है कि जैसे इंपोर्टेड फर्नीचर आता है and कितने हाई वैल्यू में बिकता है। आप देखो, अगर सिल्वर का फर्नीचर अगर आप बेचोगे नितिन जी, तो पहली चीज कस्टमर पूछेगा वेट क्या है इसका, और किसी प्रोडक्ट में नहीं पूछेगा, सिल्वर में पूछेगा इसका वेट क्या है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि वो उस सिचुएशन से हटने का तरीका ब्रांड बिल्डिंग है। आपका सिल्वर एम्पोरियम है तो यू कैन सेल एट एनी प्राइस, बट नॉट एवरीबॉडी कैन। एक मैं बोलना चाहूंगा, ये आपकी चीज एकदम बराबर है कि ब्रांड बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मगर जब आपके डिजाइन और आपकी कंसिस्टेंसी और आप जब कैटेगरी एक्सपांड करते हो, पीपल डोंट आस्क फॉर प्राइस, दे गिव पे द प्राइस फॉर योर एफर्ट्स। तो वो चीज इंडिया में है और काफी रिटेलर्स के साथ में हो रही है, मैन्युफैक्चर के साथ में हो रही है। मगर वो चीज को एक्सेप्ट करके उसको फुल फ्लेज इंप्लीमेंट करना, वो हर एक मैन्युफैक्चर और रिटेलर्स का एक काम है, वो जो नहीं कर पा रहे। ग्रेट। नाउ टेकिंग दिस पॉइंट अहेड, सर अभी तक तो हम लोगों ने प्रोडक्ट कैटेगरीज वगैरह सारी बातें की। नाउ आई कम टू रिटेल पॉइंट। जब रिटेल की हम बात करते हैं तो आज की डेट में 80 to 85% स्टोर हमारे पास में इन स्टोर चांदी बिकती है। जो ज्वेलरी वाला है उसी की दुकान के अंदर छोटा सा एक सेक्शन होता है जिसके अंदर स्टोर के अंदर चांदी बिकती है। Now I want to ask one question to Rahul ji as well as Deepak ji. First I will get the response from Rahul ji and then Deepak ji. जब स्टोर डिजाइन होता है तो what should be the planning of merchandising, planning of inventory, and how to place that in stores for the store which is a standalone store as well as store in store. सो उसके ऊपर आप मेरे को थोड़ा सा गाइडेंस बताइए ताकि जो रिटेलर सुन रहे हैं उनको ये पता चले कि हाउ दे कैन ग्रो देयर बिजनेस इन सिल्वर एंड दोज पीपल हु आर एस्पायरिंग टू क्रिएट अ न्यू स्टोर। कैन यू जस्ट एनलाइटन ऑन दिस? तो जब भी कोई अपना चांदी करने जा रहा है या जो एग्जिस्टिंग स्टोर है, सबसे पहला पॉइंट जो सोचना है, नो योर कस्टमर। यू शुड नो हु योर बायर इज गोइंग टू बी, कि क्या रिक्वायरमेंट है, उसके क्या रिलीजियस प्रेफरेंसेस है। नेक्स्ट कम्स इज कैटेगरी, आपको क्या कैटेगरी पे काम करना है। अभी कैटेगरी पे काफी लोगों ने सोचा ही नहीं अभी तक। जैसे मैं कैटेगरी बोल रहा हूँ, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट एक्स है तो मैं या तो गिफ्टिंग पे कॉन्सेंट्रेट करूँ, या मैं खाली पे कॉन्सेंट्रेट करूँ, या मैं वेडिंग कलेक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करूँ,
या मैं फर्नीचर पे कॉन्सेंट्रेट करूँ, तो ये कैटेगरीज को डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि मैं मेरे कंज्यूमर के हिसाब से, जो मेरे कस्टमर है उसके हिसाब से मुझे कैटेगरी पे, किस कैटेगरी पे फोकस करना है। वो कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कैटेगरी से आपका स्टोर डिफरेंशिएट होएगा। जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है, आप उसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? सो बेस्ड ऑन कैटेगरी यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। थर्ड, एक और चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो नए रिटेलर्स जो ट्राई करते हैं कि मेरी घर की दुकान है, उस दुकान पे मेरे अभी खाली पड़ी है, तो उसके अंदर मैं चांदी का शो डालता हूँ, तो वही जगह पे करता हूँ। नाउ लोकेशन बिकम्स अ मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ स्टोर, बिकॉज आपकी विजिबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप ऐसा नहीं है कि आपकी दुकान कोई पड़ी है, कोई आपने वहां पे चांदी का दुकान कर दिया। यू हैव टू बी इन द मार्केट विद वेरी गुड विजिबिलिटी। तो ये 3 फैक्टर से आपको बहुत कुछ आइडिया आ जाएगी कि आपकी इन्वेंट्री की प्लानिंग कैसे करनी है। अगर आपने सोचा कि मैं पूजा की आइटम पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा, मेरा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, अगर पूजा की आइटम में कलेक्शन इतना रखूंगा कि जो भी बंदा आएगा उसके पूजा के आइटम के लिए उसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ खाली में वेडिंग कलेक्शन पे, तो जो शादी के लिए खरीदी करने आ रहा है उसके लिए जो आइटम चाहिए, जैसी आइटम चाहिए, वो सब मेरे स्टोर पे अवेलेबल होगी। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ कि आपकी स्टोर की डिजाइन, आप प्रोडक्ट कैसे डिस्प्ले करोगे। डिस्प्ले के साथ में लाइटिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप प्रोडक्ट कैसे दिखा रहे हो, कैसे दिखेगा। नेक्स्ट, द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैकेजिंग। आप उस प्रोडक्ट को कैसे पैक करके आगे दोगे। इन स्टोर कम्युनिकेशन। सो ये पूरी एक साइंस है। आप जब एक स्टोर खोलते हो तो बहुत से ये 10 या 15 चेकलिस्ट है जो आप टिक मार्क करते हो। यू आंसर योरसेल्फ एंड देन यू गेट द आंसर कि क्या मर्चेंडाइज प्लानिंग करनी है। जो स्टॉक इन्वेंट्री प्लानिंग करनी है वो तो सबसे लास्ट चीज है। पहले ये सब करोगे तो आपको स्टॉक क्या प्लानिंग करना है उसका अब आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर आ जाएगा कि आपको कौन सी कैटेगरी पे काम करना है, क्या प्राइस रेंज पे काम करना है। आपको 5 से लेके 10,000 की कैटेगरी पे काम करना है कि आपको लाख से लेके 5 लाख की कैटेगरी पे काम करना है। तो ये मेरे थॉट्स है, जो भी चांदी के स्टोर करने जाए तो ये सब पॉइंट्स का ध्यान रखें, और ये स्टोर से काफी कुछ आपको आइडिया आ जाएगी क्या मर्चेंडाइज होना चाहिए, आपको कैसे प्लानिंग करनी चाहिए। Great. Deepak ji, your take on this? I think that Rahul has said most of the points, and I agree with most of his points, except for the fact that he is looking for very specialized categorization where I don't agree. The same customer will be buying a Ganesha from me, and incidentally, 60 to 70% of my sales is in Ganesha, silver Ganesha, and the same customer will be buying a bowl set from me or a tea set from me. So I think, yes, you have to have a lead category. You have to have a very, very lead category for which you're known. But you're known as a silversmith also, you're known as a silver retail shop, for example. And therefore, you need to maintain other products also, because the customer will not want to come to you and then go somewhere else, because then you may lose a customer totally. So you need to have a variety, I think, in fact. The rest of the factors, I agree with Rahul that once you decide on what you're going to do, what products you're going to keep, or what, then the inventory level automatically comes into play. You have to work backwards and calculate your inventory. There's no fixed factor that the inventory has to be worth 10 rupees or 50 rupees or 1,000 rupees or whatever. Then it comes automatically. Now your question is that silverware is a part of a small part of a jeweler's shop. And how to overcome that? I don't think that the economics will sort of allow the jewelers to devote more space, return on investment per square foot. I think silver is kept more as a necessity because their customers ask for silverware, but their turnover is more dependent upon higher price products, which are gold and diamonds. A lot of our dealers are into diamonds, mainly into diamonds, and they also buy silver. And therefore, I don't think that you can change that unless you come out with something which is a path-breaking thing that they will keep your product in the window to attract customers. Unless you have statement pieces, it's a different story. But taking a bigger share of a jeweler's showroom is difficult. Got your point, sir. Got your point. Basically, both. हाँ बोलिए राहुल भाई ने जो कहा कि जो सिल्वर का जो प्लेसमेंट है शोरूम में, वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वो कहाँ सिल्वर को डिस्प्ले कर रहा है, किस जगह पे। जैसे कि उसका जो शोरूम है, उसका जो कैश काउंटर है, अगर वो कैश काउंटर के बगल में सिल्वर लगाता है तो वो इजीली विजिबल हो जाता है। जैसे राहुल ने कहा कि इट हैज टू बी विजिबल, तो विजिबल कैसे होना चाहिए? अगर वो कैश काउंटर के बगल में लगा रहा है तो वो ज्यादा विजिबल है, ज्यादा वो पब्लिक के कॉन्टेक्ट में आ सकता है सिल्वर काउंटर।
तो वो ज्यादा सक्सेस हो सकता है, ये मेरा कहना है. I think Rahulji was talking location of store. Yeah. Yeah, Avinash, I would like to add one last point on this discussion. When we talk about retailers की जो दुकान है उसके अंदर चांदी का जो सेक्शन है बहुत छोटा रहता है या वो एक्सपांड नहीं करना चाहते. As a manufacturer or as a wholesaler, उनकी ड्यूटी है कि how you can enable the retailers to run their store in an effective way with a lower inventory. आप उसको digitally कैसे products available करा सकते हो, ready to ship inventory कैसे कर सकते हो, lower lead time कैसे कर सकते हो, वो सब चीज जब उसका retailer का ROI वो सेक्शन से बढ़ेगा कम स्पेस के अंदर, that is where his interest of will go high to build a standalone store for Silver. Absolutely. Great. On this point only, Rahul, I will just say collaboration will be the new mantra. When you said when the ROI will increase if collaborations happen between the manufacturers and the retailers. The trust between the manufacturer and the retailer and the collaboration is the key. There might be a lot of things which are there with the manufacturer, but because of the space shortage or because of the low investment profile he has, he cannot keep everything. But digitally what you have said is a very, very key. And I think Mr. Deepak also will agree to this particular aspect where collaborations will play a big role in the future. गुप्ता जी, मैं आपसे एक छोटा सा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करना चाहूंगा कि हाउ यू फील ज्वेलरी, बिकॉज यू बिलोंग टू द ज्वेलरी एंड द चेन सेक्शन, हाउ मच effort you will be needing to put from your side in collaboration with the jewelers in India, because there are no standalone silver jewelers or they will be competing with their own jewelry. So how do you find that? देखिए, ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. हर आदमी के अपने इंटरेस्ट हैं, कस्टमर्स के अपने इंटरेस्टेड हैं. वो 4 प्रोडक्ट का माल रखना चाहता है, चाइना का रखना चाहता है. इट्स नॉट ए इजी टास्क फॉर मेकिंग सम काइंड ऑफ कोलैबोरेशन. देखिए, फिर भी ऐसे लोग मतलब आइडेंटिफाई हो सकते हैं जो कुछ कंपनियां जिनसे आपके बहुत क्लोज रिलेशन है, तो उससे बात की जा सकती है और उसको प्रमोट कर सकते हैं. और हर मैन्युफैक्चरर्स का डिफरेंट टाउन में एक आदमी से कोलैबोरेशन हो जाए, तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड आइडिया. तो आई थिंक इट इज पॉसिबल और उससे थोड़ा काम बढ़ भी सकता है. Great, sir. Now I will go to the extent of saying that collaborations is the way forward now. Perhaps the only way. Maybe in terms of marketing also, maybe in terms of influencer, paying for celebrities for influencer marketing, or maybe in terms of shop and shops. I think that is because overheads have to be cut, which were there rampant before, and they have to be reduced somewhere. And collaborations are the mantra, absolutely very necessary now. I'm sorry. Great. Now I will deviate a little bit from the entire industry related. Now I'm moving towards policy. Policy plays a big role for any industry to grow, and retaining the skilled worker labor force is also very, very important. What role MSME policies, which are for the industry, and 99% of the silver industry today is falling under MSME. मैं जाम्बर जी को इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बुलाना चाहूंगा और उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या-क्या ऐसी पॉलिसीज हैं जो MSME की, जो हमारी सिल्वर इंडस्ट्री को ग्रोथ के पाथ पे लाने के लिए अपने को काम में आएगी और हमारे स्किल्ड वर्कफोर्स को रिटेन करने में फायदा देगी. जाम्बर जी, ओवर टू यू. थैंक यू माइंडस्पीक. 1 मिनट सिर्फ मैं चालू करता हूँ पीपीटी. अविनाश जी, आप दिख रहे हैं बराबर? Yes. Good afternoon, Mindspeak. Thanks once again for giving me this opportunity to share my views regarding MSME, the game changer. अभी तक लगभग 60 मिनट से हम लोग जो सुन रहे हैं कि हमको ब्रांड डेवलप करना है, इफिशिएंसी बढ़ाना है, क्वालिटी डेवलप करना है, कोलैबोरेशन करना है. MSME इस एक चीज में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. ये सब करने का रास्ता MSME की ओर से जाता है.
जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई स्कीम है, जिसका यूज करके हर व्यापारी, हर ट्रेडर, हर मैन्युफैक्चरर अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से, अपने अपने व्यूज के हिसाब से, अपने अपने सोच के हिसाब से इसमें एंटर करते हुए अनेक फायदे अपने अपने हिसाब से ले सकता है। इसमें कई अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, वो हिसाब से माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, 3 तरह इंटरप्राइज इसमें है, जिसके अलग अलग टर्नओवर्स है, और मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर दोनों भी कैटेगरी इसमें इंक्लूडेड है। फर्क इतना ही है कि मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू ट्रेडर, बिकॉज गवर्नमेंट का थ्रस्ट एरिया है मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया। इसके जो फायदे, इसकी तरफ हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा, जो नई इंडस्ट्री खुलती है किसी भी तरह की, चाहे ज्वेलरी इंडस्ट्री हो, सिल्वर इंडस्ट्री हो, इसके प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट क्या क्या चीजें देती है। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी है, जो कि पहले वैट के माध्यम से आती थी, ये कैपिटल इंसेंटिव था। फिलहाल महाराष्ट्र में ये जीएसटी के रूप में है। अलग अलग स्टेट में ये सब्सिडी अलग अलग तरीके से है। बाद में सेकंड नंबर पे आती है इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी। थर्ड नंबर पे आती है एग्जम्पशन इलेक्ट्रिकल ड्यूटी, वेवर इन स्टैम्प ड्यूटी और पावर टेरिफ सब्सिडी। पावर टेरिफ सब्सिडी मतलब लगभग 1 रुपया प्रति यूनिट बिजली का बिल अपने को डिस्काउंट मिलता है। ये सब सब्सिडी देने का गवर्नमेंट का उद्देश्य बहुत ही सिंपल है, आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी सुधरे, आपकी कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो और इंडिया का प्रोडक्शन और क्वालिटी आइटम बने, ताकि आप एक ब्रांड बनो, ताकि आपका एक्सपोजर बढ़े और आप वर्ल्ड वाइड अपना मैन्युफैक्चरिंग का ठाका जमाओ। हम आगे आते हैं कि भाई नए के लिए तो ठीक है, लेकिन पुरानों के लिए क्या है और डेवलपमेंट के लिए क्या है। जो पुराने यूनिट है या जो इसमें नहीं भी है, उनके लिए कुछ ऐसी स्कीम है, जैसा आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है, अपने फैक्ट्री की नई मशीन लाना है जो कि आपके प्रोडक्शन को स्टिमुलाइज करे या फिर उसको कॉस्ट इफेक्टिव करे, सस्ता करे, उसके लिए सब्सिडी है। आपके क्वालिटी सर्टिफिकेशन, जैसा भी बताया थी, क्वालिटी हमको अच्छी करनी पड़ेगी, क्वालिटी अच्छी रहेगी, डिजाइन अच्छी रहेगी तो लोग अपना प्रोडक्ट लेंगे। तो क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए भी आपको सब्सिडी है। क्लीनर प्रोडक्शन मेजर्स, मतलब आपके वातावरण को दूषित न करते हुए आपके स्टाफ को अच्छे माहौल में आप अगर प्रोडक्शन एरिया या वर्किंग एरिया देते हो, उसके लिए जो खर्चा आता है उसके लिए भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि अपनी प्रोसेस पेटेंट है, प्रोडक्ट जैसे बहुत चीजें हैं कि जो इंडिया में यूनिक बनती है, इसका पेटेंट आप ले सकते हो। बाद में वाटर ऑडिट करा सकते हो, एनर्जी ऑडिट करा सकते हो, एनर्जी इफिशियंसी के लिए है। और लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेडिट रेटिंग, क्योंकि हमेशा हमको लोन की जरूरत पड़ती है, कैपिटल की जरूरत पड़ती है। कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए भी एमएसएमई को अगर आप रजिस्टर होते हो तो आपको इसमें बहुत फायदे हैं और आपके रेटिंग के हिसाब से आपको डिस्काउंटिंग मिलता है इंटरेस्ट रेट में। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। स्पेशल बेनिफिट जो एमएसएमई को मिलते हैं, जो कि अदर इंडस्ट्रीज को या अदर यूनिट्स को नहीं मिलते हैं, इसमें सबसे पहला जो है जेड बेनिफिट, जिसके बहुत चर्चे अपने लास्ट सेमिनार में भी किए थे। लास्ट वेबिनार जो हुआ था स्पेशली एमएसएमई पे, और इसमें मैं ज्यादा समय इसमें दूंगा क्योंकि अभी तक जो बात अपन ने की है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ब्रांड होना चाहिए, प्रोडक्शन समय पे होना चाहिए, मिनिमम वेस्टेज होना चाहिए, ये सब चीजें इन 5 जो स्पेशल एमएसएमई के बेनिफिट है इनमें पूरी कवर हो जाती है। ये अपने आप ही अपने यूनिट को मिल जाती है। जेड का मतलब यहाँ है जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट। जीरो इफेक्ट का मतलब है कि अपन जो काम करते हैं या जो यूटेंसिल्स या ज्वेलरी बनाते हैं, इसका एनवायरनमेंट पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए, कल्चर को इफेक्ट नहीं आना चाहिए, और ये ज्वेलरी इतनी डिफेक्ट फ्री होनी चाहिए कि कस्टमर जब इसको लेता है तो इसको विश्वास होना चाहिए कि मेरे को तकलीफ नहीं होगी, इसको मेडिकली इफेक्ट नहीं होगा, चुभेगी नहीं। जैसा अपन सेफ्टी पिन भी फॉरेन की लेते हैं, इंपोर्टेड लेते हैं, तो जो सुई होती है सेफ्टी पिन में, इंडिया की सेफ्टी पिन में सुई चुभती है। आप फॉरेन की सेफ्टी पिन ले लो, उसमें सुई चुभेगी नहीं आपको कभी भी, बट इट विल वर्क एज इफिशिएंटली एज अवर्स वर्क। सेकंड पॉइंट है इसमें लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, जो कि टोयोटो टेक्निक के नाम से बहुत फेमस है। लीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना है जिसमें कम से कम वेस्ट हो। वेस्ट कम होने के साथ साथ आपको हर चीज को लेस यूज करना है। मतलब आपका प्रोडक्शन जब होता है तब लेस ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, लेस इक्विपमेंट यूज होना चाहिए, लेस टाइम में प्रोडक्ट बनना चाहिए और लेस स्पेस में बनना चाहिए। और ये लीन मैन्युफैक्चरिंग का ऐसा स्कीम है एमएसएमई का कि 10 यूनिट या उससे ऊपर यूनिट, या अभी तो शायद 6 यूनिट पर भी उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। 6 यूनिट एक साथ आके अगर कोई एसपीवी बनाते हैं और कोई कंसल्टेंट अपन हायर करते हैं, सपोज कोई कंसल्टेंट अपने से 25 लाख रुपए मांगता है कि मैं आपको
इन टेक्निक को सिखाने के या प्रोडक्शन आपका एफिशिएंट करने के कुछ पैसे लूंगा, तो उसका 80% कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करती है और 20% ही हमको बेयर करना है। और ऐसे कई ज्वेलरी के लीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में भी कार्य कर रहे हैं। होसूर में है, बॉम्बे में भी एक नया लीन का भी काम चल रहा है, और डिजाइन स्टूडियो और डिजाइन एक्सपर्टाइज स्टूडियो फॉर एमएसएमई ओनली, इसमें भी गवर्नमेंट बहुत बड़ी सब्सिडी देती है। सब्सिडी बोलने के बाद डायरेक्ट पैसा देती है, सब्सिडी तो एक अलग वर्ड होगा कि अपन पहले खर्चा करें फिर गवर्नमेंट डायरेक्ट पे करती है, दे टेक पार्ट इन अवर। और ये अपने जो डिजाइन इंस्टीट्यूट इंडिया के नेशनल डिजाइन इंस्टीट्यूट एनआईटीज, इसके साथ ये कोलैबोरेशन है गवर्नमेंट का, और ये अपने को डिजाइन सेमिनार्स, डिजाइन कैसे क्रिएट करना, अपने स्टाफ को कैसे ट्रेन करना डिजाइन के लिए, और डिजाइन क्लिनिक, एक मल्टी डिजाइन क्लिनिक जाके 10 लोग मिलके बनावे और 10 ही लोगों का डिजाइन वहां बने ताकि कम पैसे बने और उसका प्रोडक्शन हो सके प्रॉपरली। इसके लिए डिजाइन एक्सपर्टाइज और डिजाइन यूनिट भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। बाद में आता है क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी टेक्निक्स। आईएसओ जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड अगर अपन अपनाते हैं या उनको फॉलो करते हैं और उनके एप्लीकेशन के लिए जो भी खर्चा आता है उसमें गवर्नमेंट अपने को बहुत बड़ा सपोर्ट करती है। सेकंड पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अपन बहुत सी प्रोसेस, बहुत से प्रोडक्ट अपन रजिस्टर करवा सकते हैं, इसमें भी गवर्नमेंट अपने को हेल्प करती है और बहुत सी कॉस्ट इसमें गवर्नमेंट बेयर करती है। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। जैसा कि दीपक जी ने कहा, गुप्ता जी ने कहा कि आगे का जो मंत्र है यह है सबको साथ में आगे काम करना पड़ेगा, सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। अकेला आदमी कहीं काम कर नहीं पाएगा, ये डिफिकल्ट होगा। तो क्लस्टर डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट की उद्देश्य यही है कि 10 लोग या 10 से ज्यादा लोग एक साथ आए, एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बने, ताकि उसको जो लगभग 80% फंडिंग, मैं सब्सिडी नहीं बोल रहा हूँ, फंडिंग बोल रहा हूँ, फंडिंग गवर्नमेंट देती है मैक्सिमम 80%, मतलब 20% कॉस्ट में अपना काम चल सकता है। 10 यूनिट अपना प्रोडक्शन एफिशिएंट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और इंडिया में भी ज्वेलरी के कई क्लस्टर अच्छे से चल रहे हैं जो, और इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को हमको है अभी, और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। लगभग 10 साल से इनिशिएटिव चल रहा है, लेकिन ज्वेलरी फ्रेटर्निटी की तरफ से इसको बहुत कम रिस्पॉन्स है या बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, नई चीज गवर्नमेंट ने, एक नया स्पेशल व्हीकल गवर्नमेंट ने एमएसएमई के लिए डेवलप किया है, जो कि अभी बहुत चर्चा में भी है, जिसकी गवर्नमेंट बहुत ऐड कर रही है, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। ये ऑनलाइन मैकेनिज्म है इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए, जो कि मैन्युफैक्चर करता है, ये ट्रेड्स रिसीवेबल के लिए। और इसके थ्रू अपनी जो कैपिटल ब्लॉक होता है इसको हम बहुत अच्छे से रिलीज कर सकते हैं। और कई बार अपने को प्रश्न आते हैं कि भाई मैं मैकेनिज्म पे आ जाऊंगा लेकिन पार्टी नहीं आएगी, तो गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट इन इंडिया एंड पीएसयूज who are having turnover more than 500 CRs to register it on compulsory basis। तो इसमें निश्चिंत रहिए, आपके जितने बड़े कस्टमर्स है ये सब इस मैकेनिज्म पे ऑलरेडी है, ऑटोमेटिकली रूट से है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और इसी के तहत अभी आरबीआई ने एक M1 एक्सचेंज करके, एक जैसा अपना MCX है वैसा एक एक्सचेंज को परमिशन दी है करीब साल भर पहले, जो कि ट्रेड प्लेटफॉर्म के बेस पे काम करता है, जहां पर बैंक्स या फाइनेंसर्स जो अपने रिसीवेबल्स है, इनवॉइस और ये ट्रेड रिसीवेबल है, इसको फाइनेंस करते हैं बहुत ही कम इंटरेस्ट, लगभग 7-8% या मैक्सिमम 9% पे ये फाइनेंस हो जाते हैं। और बहुत ही स्मूथली ये काम इंडिया में चल रहा है। इसका अवेयरनेस कम है, और इसका अवेयरनेस होने के बाद, क्योंकि अपने बिजनेस में सबसे बड़ी जो कॉस्ट है इट इज कैपिटल कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल कॉस्ट, नॉट कैपिटल कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल कॉस्ट, जो कि हमारी ब्लॉक हो जाती है। तो यहाँ पर अपन अपनी वर्किंग कैपिटल कॉस्ट को बिल्कुल फ्री रख सकते हैं, और T1 बेसिस पर ये काम होता है। T1 मींस जिस दिन आपका ट्रेड अप्रूव हो गया, आपने किसी पार्टी को माल दिया, आपने इनवॉइस अपलोड किया, आपके पार्टी ने उसको अप्रूव किया, अप्रूव होने के 1 दिन के अंदर या मैक्सिमम 2 डेज के अंदर आपको पेमेंट रिसीव हो जाता है। ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम। और ये M1 एक्सचेंज बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करना चालू किया इसने अभी, और बहुत अच्छा स्कोप है, लोग इसका ज्यादा फायदा उठावे। और अभी अभी जो कोविड के समय गवर्नमेंट ने वेब पोर्टल लॉन्च किया था, यानी चैंपियंस ऐसी चीज गवर्नमेंट ने लॉन्च की है कि अपने जो दिक्कतें आ रही है, एमएसएमई को जो भी दिक्कतें आ रही है, सपोर्ट, हेल्प, हैंड होल्डिंग और अपनी ग्रीवेंसेस, ये सभी चीजें हम अपने इस पोर्टल पे डाल सकते हैं। और
इसका सॉल्यूशन ऑनलाइन मिलता है और ये पोर्टल सिर्फ ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन वर्क नहीं करता है। इसमें अपने को जो भी ग्रीवेंसेस है एनी फील्ड रिगार्डिंग एमएसएमई, whatever problems we are facing in MSME, we have to put it up, we have to upload them, we will get a solution within a stipulated time from the government. This is one of the best thing the government has started just now, and we should take maximum benefit of all these things. मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोग समय हो चुका है और सिल्वर से हटके है थोड़ा, लेकिन ये बात पक्की है कि एमएसएमई के बिना कोई भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती, स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकती, ब्रांड नहीं बन सकती। अगर हम इस चीजों को फॉलो करें या इन चीजों का उपयोग करें, फायदा उठाए, तो अपने आप ही एक समय के अंदर हर यूनिट, हर एंटरप्राइज, छोटा बड़ा, अपने आप में ब्रांड बनने देर नहीं लगेगी। वो भले इंटरनेशनल ब्रांड ना बने, लेकिन नेशनल ब्रांड, लोकल ब्रांड तो जरूर बनेगा, और इसका जितना फायदा हम उठाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। और गवर्नमेंट का इंटेंशन जो है इसमें बहुत ही सिंपल है कि इन चीजों का, इन सुविधाओं का, इन स्कीम्स का हम लोग फायदा उठाए, ना कि ये सोच के कि सब्सिडी है, बट एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करें, इस सेक्टर को इस तरह उम्दा बनाए कि जैसा आज हम लोग इंपोर्टेड गुड्स के पीछे हैं, कल चल के फॉरेनर लोग या फॉरेन कंट्रीज हमारे चीजों के, हमारे ज्वेलरी के, हमारे यूटेंसिल्स के पीछे रहे कि इंडिया शुड गेट अ प्रीमियम। मैं जब हांगकांग में बैंकॉक गया था, जहां पर कि एग्जीबिशंस इंडिया के लगे थे, बहुत ही कम स्टॉल्स, इटली में बोलो आप, बहुत ही कम स्टॉल्स इंडिया के होते। क्यों होते? क्योंकि द क्वालिटी वी मैन्युफैक्चर और उनकी क्वालिटी जो है, वो जो डिमांड करते हैं, उसमें बहुत बड़ी गैप है। और ऐसा भी नहीं है कि हम उस गैप को कम नहीं कर सकते। और इस एमएसपी प्लेटफॉर्म की खासियत है कि इसमें उस गैप कम करने के लिए आपको सुविधाएं दी गई है, ताकि आप गवर्नमेंट की हेल्प से एक में के 10 साथ में लेके 10 लोग एक साथ कोलैबोरेशन करके उस गैप को कम कर सके और हम कॉम्पिटिटिव बन सके। Great, Jhambar Thank ji. you. Very nicely explained in very short time. A very big subject. Abhi, yeah, you can stop your screen share. क्या? तो बहुत ही अच्छे से आपने समझाया झांबड़ जी। मेरे हिसाब से आज की डेट में एमएसएमई की जो स्कीम्स हैं, वो हमारे सिल्वर इंडस्ट्री को ऊपर लेकर जाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित करेगी, मैं इसकी उम्मीद करता हूं। अभी इसी कड़ी के अंदर मैं एक चीज अब आऊंगा, मैं नितिन भाई के फेवरेट सब्जेक्ट और संजय भाई के फेवरेट सब्जेक्ट पे। हम सब बात करते हैं कि आज अगर से मैं इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो उसका B2B नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और उसी के अंदर कोलैबोरेशंस की जब हम बात कर रहे थे, तो B2B नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा उतना कोलैबोरेशंस बहुत स्ट्रांग होंगे। तो आपके हिसाब से आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहोगे संजय भाई और नितिन भाई, कि जिससे कि हमारा B2B कनेक्ट, आज तक जो B2B कनेक्ट है वो सभी सेगमेंट्स में अलग अलग होता है, लेकिन सिल्वर के लिए कोई स्ट्रांग B2B कनेक्ट का नहीं है, तो उसके ऊपर आपकी और नितिन जी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और इसको हम कैसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं? नितिन भाई और संजय जी दोनों के ऊपर ये क्वेश्चन मैंने दिया है। संजय जी हमारे पैनल के कन्वीनर है, संजय जी से सुनना चाहेंगे पहले। नहीं, मेरा तो ये ऐसा सोचना है नितिन जी और अविनाश जी, कि जैसे जो आजकल जो हमारा जो ये मेक इन इंडिया का चल रहा है प्रोग्राम, कि जो चाइना का जो टेक्नोलॉजी है वो हम लोग अगर इंडिया में ला सकें और वहां से हम लोग कुछ किसी यहाँ पर फैक्ट्री खोल के वहां से कोलैबोरेशन कर सकें और उसका हम यहाँ पर B2B हम कुछ एक्सपेंशन कर सकें और कोलैबोरेशन कर सकें, तो वो इस समय हम, जैसे अभी झांबड़ जी ने बताया एमएसएमई का और क्लस्टर का, इन्होंने बताया कि भाई 10 आदमी मिलके कुछ इस तरह का कॉमन फैसिलिटी सेंटर करें प्रोवाइड, और इस तरह के हमारे पास में लोग भी हैं, जगहें भी हैं, और हमारे जो को कन्वीनर हैं सिल्वर पैनल के जयेश राठौड़ जी, उनके पास में उस चीज के लिए बहुत अच्छी स्कीम्स वगैरह भी हैं जो हमने आपस में बीच में लास्ट वीक में ही हमने एक दूसरे से शेयर की थी, और वो इस तरह का हम लोग कर सकते हैं। और हमारे पास में उसके पूरे प्रपोजल्स भी हैं जो हम लोग आफ्टर द ये वेबिनार हम लोग उसको सर्कुलेट कर सकते हैं या हम लोग आपको बता सकते हैं क्या है। तो उस तरीके से हम लोग उसको B2B जो है, जो आप कह रहे हैं, वो ये मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ, ये मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और दूसरा जो B2B जो फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू द रिटेलर, जैसे कि जो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने कहा था कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें कि सिल्वर के जो स्टोर्स अगर जो आ सके एक्सक्लूसिवली सिल्वर स्टोर्स, तो उससे
B2B सिल्वर का सेल बढ़ेगा? नितिन भाई। संजय भाई, एक्सक्लूसिव सिल्वर के स्टोर्स का एक लिमिटेशन है, वो आना चाहिए, क्योंकि वो जैसा अभी अविनाश जी आ रहा है या फिर चेन्नई के अंदर बने हैं, तो उसके अंदर जो ऑल द वे परचेसिंग के लिए जाता है वो उसके अंदर जाता है सिल्वर के लिए। लेकिन जब हमारे 4-4, 5-5 मंजिल के शोरूम्स हैं इंडिया के अंदर, जहाँ पे फुटफॉल वैसे हजारों से आता है, और वो आते समय दिमाग में कुछ सोच के नहीं आते, कई कस्टमर ऐसे आते हैं कि कुछ लेना है, चाहे वो धनतेरस हो या ओकेजन या फिर गिफ्ट आर्टिकल है। तो आज हमारा जो स्टाफ है वो सब ट्रेन है, तो डायमंड में वो आता 5,000, 2,000 की चीज लेने के लिए, और उसको हम बता के थक जाते हैं, खुद दे नहीं पाते, क्योंकि 1 ग्राम सोना ही आज बिगर लेबर के 5,000 रुपए का हो रहा है, फिर जीएसटी और लेबर तो अलग हो गया, लेकिन 5,000 में हम सिल्वर की बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम इसके अंदर जो स्टाफ की ट्रेनिंग है उसके तरफ सिल्वर, और हम लोगों को जो ओनर्स है ज्वेलरी शोरूम के, उनके साथ में एक नेशन वाइड एक हमारे को B2B उनके साथ हमारे को एक संवाद करना पड़ेगा, जिसमें हम समझा सकते हैं कि लो इन्वेस्टमेंट में हाई प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं। आज एक गोल्ड का 5,000 की चीज बेचते हैं तो मुश्किल से उसको 2-3 टका मिलता है, लेकिन सिल्वर के अंदर पोटेंशियल है कि हम उसको अच्छी पैकिंग और अच्छा अट्रैक्शन देके, तो एक पॉइंट नंबर 1 करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, मेरे अभी मैंने जब रात को नोट्स बना रहा था और मैं देख रहा था कि हर चीज के अवार्ड्स फंक्शन है। अगर हमने अपना सिल्वर को अपन बड़ा बनाएंगे और सिल्वर हम B2B प्रोग्राम करेंगे, हम एक नेशनल लेवल के ऊपर ओनली सिल्वर से रिलेटेड एक अवार्ड बनाते हैं, जिसके अंदर यूटेंसिल्स का हो, फर्नीचर का हो, क्या बोलना चाहिए, ट्राइब ज्वेलरी का हो, या फिर आपके हाउस होल्ड का, पूजा को, ऐसे अलग अलग कैटेगरी बना के अगर हम नेशनल लेवल पे अवार्ड बनाते हैं और वो अवार्ड फंक्शन को एक नेशनल लेवल पे लेके जाते हो, तो ऑटोमेटिकली ऐसे ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े स्टेप लेके हम सिल्वर की डिमांड पब्लिक से निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारे अशोक भाई हरदम बोलते हैं कि एक्सेप्ट कस्टमर ऑल इज एक्सपेंडिचर। कस्टमर ही नहीं रहेंगे तो हम उसके अंदर उसको बढ़ाएंगे कैसे? तो हमारे को B2B B2C के अंदर B2B एग्जीबिशन, एक बार हम मिलते हैं राहुल भाई, तो मुझे लगता है कि अगर फिजिकल एग्जीबिशन करते हैं तो नथिंग लाइक दैट, लेकिन अगर नहीं है तो हम वर्चुअल के ऊपर एक एग्जीबिशन का प्लान करते हैं। तो एक बार अपन इकट्ठा मिलते हैं, और जो भी चीजें अभी मैंने बैठे बैठे सारे पॉइंट्स लिख रहा था मैं, खास करके अभी कोलैबोरेशन जो अविनाश जी ने बोलते बोलते बोला, तो मैं छोटे सिटी में बैठ के कैसा कोलैबोरेशन कर सकता हूँ बड़े चीजों के साथ में, तो बहुत ही सुंदर ये चल रहा था और ऑनगोइंग है। और उसमें सोशल मीडिया से लेके सबको एक्टिव करके हम B2B पहले करते हैं और B2C को इसको प्रमोट करने के लिए स्टोरीज बिल्टअप करते हैं, और स्टोरीज बहुत अवेलेबल है और कुछ क्रिएट भी की जा सकती है। ग्रेट सर, सफिशिएंट है। क्वेश्चंस मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मैं एक लास्ट क्वेश्चन लूंगा बिकॉज टाइम मेरे को परमिट नहीं कर रहा है, 3:20 ऑलरेडी हो रहे हैं। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है और बहुत बड़ा बिजनेस है ये, लेकिन ऑफ लेट मैंने देखा है या सुना है कि सिल्वर इज गेटिंग हर्ट बिकॉज ऑफ द inward entry of new technologies. For example, silver plated भी आ गया है, and other lot of cheap gifting ideas have already started. So what are the strategies as an industry we should play to come to get back the corporate gifting stories towards the silver industry again? My first first response I will be asking from Gupta ji, फिर मैं आऊंगा दीपक जी के पास और लास्ट में जाऊंगा राहुल जी के पास। तो तीनों के ये कमेंट्स एक बार मैं लेना चाहूंगा ऑन कॉर्पोरेट गिफ्टिंग। मेरा पहले कॉर्पोरेट गिफ्टिंग इज डेफिनेटली गुड बिजनेस, और उसके लिए पहले तो एक कॉमन ब्रांड बनाया जाए, उसमें 10-20-25 मैन्युफैक्चरर्स या जो भी सिल्वर की इंडस्ट्री के लोग आए, उसका एक ई कैटलॉग बनाया जाए। क्योंकि देखिए ई कैटलॉग से बड़ी हेल्प मिलेगी, कॉर्पोरेट वालों से बात की जाए और कॉमन फैसिलिटी से अगर काम किया जाएगा, ब्रिलियंट आइडिया। on one platform they get all the products which everything, जैसे articles we can use as a gift, even jewelry can be used as a gift, and they are all silver के बहुत सारे articles हैं, वो coin भी होता है, सब कुछ हो सकता है। तो उसके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म हो मार्केटिंग का, कॉमन ब्रांड हो, so we can give them a guarantee, और इसमें I think it will be a great contribution of electronic e-marketing। क्योंकि आप इंडिविजुअल लोगों से बात करो तो बेकार है, इनको आपको डायरेक्टली मिलकर ही काम करना पड़ेगा। और जहाँ तक क्वालिटी की बात है, I mean if there is any problem, Mr. Bora can help us, और again we have good technology, हमको कहीं चाइना आना जाने की जरूरत नहीं है,
ना इटली जाने के लिए। हम वी हैव अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी, वी आवर प्रोडक्शन इज एज गुड एज इटालियन प्रोडक्ट, यू नो, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का काम बढ़ सकता है, और मेरे ख्याल से द बेस्ट थिंग है टू मेक ए कॉम्बिनेशन टुगेदर। एक क्लब भी बना सकते हैं, अभी 10-20 लोग मिल जाए, एक क्लब बनाया जाए और एक ब्रांड बनाया जाए। दैट इज माय आइडिया। Deepak ji. This year there will be some problem in corporate gifting. Not only the fact that demand thodi may be limited, but also the fact that many corporate companies, corporate offices will have rules not allowing vendors or to people to enter the building. I mean, this is going to happen because of Corona, the fear. Because if we are not so sure, Diwali wale din to hum jayenge nahi na, हमें 2 महीने पहले 3 महीने पहले pre-ordering करनी है, and it's going to peak. So this will be a challenge, and हमने तो उसका solution जो देखा है वो हमने virtual reality and augmented reality में हम लोग platform develop कर रहे हैं, because उसमें virtual reality में तो it is like almost a real life feel to the product. You see a platform there. ऐसे you interact with the customer, you can talk to the customer, you can get replies, you can give replies. आपको feel of the product exactly आ जाएगा. It's not like a normal PPT, not like a normal PowerPoint. So I think that this is going to be one challenge this year. The fact also, the second is that real silver में corporate gifting कम होती है. Corporate gifting mostly silver plated में होती है. Real silver में होती है, but limited होती है. वो chairmen और directors gifting हुई, personal gifting हुई, या you know गिले pieces का हुआ, special officials को देनी होती है, bank को देनी होती है. But the major volume in corporate gifting is in silver plated, which was rightly pointed out just now that a lot of Chinese imports have hurt that very badly. But I think that we should also lobby with the government to give disincentive to Chinese imports, you know, to higher duties or put it on the ban list, because it has hurt a handcrafted industry here. Thousands of artisans को affect किया है. Third point I want to say, but I wanted to ask about IPL में क्या support मिलनी थी MSME को. That is a different point. Deepak ji, rightly said by you, the government, I think, is working on disincentivizing the segment wherein it is hurting our industries, and they have sought some inputs from the industry on that particular front. That's a policy decision, but definitely we need to strategize as an industry how to promote our products in our corporate gifting. Rahul bhai, last comments from you, because we are running out of time. Yeah, so I would say I've heard everyone on terms of corporate gifting कि चांदी की डिमांड कम हो रही है, प्लेटेड के प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं, बट एज अ इंडस्ट्री हम लोग ने कभी एक एफर्ट ही नहीं डाला कि चांदी के प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करे, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के हिसाब से अच्छी डिजाइन के प्रोडक्ट लाए, अच्छे ब्रांड्स क्रिएट करे, क्योंकि आज कभी भी कोई कॉर्पोरेट भी आता तो सबसे पहले दिखा देते चांदी का कॉइन. कभी कोशिश ही नहीं की लोगों ने. जब तक आप कोशिश ही नहीं करोगे, डिमांड, चांदी की डिमांड काफी ह्यूज है. चांदी हैज अ वैल्यू, so you need to create a brand, you need to come out with good innovative products, and the lead time has to be less. Scope is unlimited. तो आप ये मत सोचो कि चाइना से कंपटीशन है, चाइना से दिमाग में है. We are not trying, we are not innovating. Great insights by all the panelists. I am running out of time. It's already 3:25. So अविनाश जी, हाँ सर. इसमें काफी लर्नेड लोगों ने क्वेश्चन पूछा है. मैं देख रहा था काफी कमेंट्स अच्छे से. गुड साइन कि 999 की प्यूरिटी के यूटेंसिल्स जो सॉफ्ट होते हैं, सर मैं बताना चाहूंगा कि उसकी एक सिस्टम होती है, उसको टेम्पर्ड किया जाता है. जो जग मेरे पास में है ये 999 प्यूरिटी का है, क्योंकि एज गुड एज 92 सिल्वर का होता है. और हम लोग 24 कैरेट की ज्वेलरी भी महाराष्ट्र में बनाते हैं, पूना, जलगांव, अकोला में. ज्वेलरी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका बनाने का टेक्निक होता है, टेम्पर्ड किया जाता है, और बनाते समय उसको जो पीट के बोलते हैं ना, पीट के ठोक के बनता है, तो हार्डनेस उसमें बहुत बेटर आता है. तो ये मिसकंसेप्शन है कि 999 की जो यूटेंसिल्स है यूज नहीं की जा सकती है, सॉफ्ट होती है, एज हार्ड एज 92 सिल्वर होती है.
Great, sir. Great insights by everybody. For the question and answer session or the closing remarks, I hand it over to Ashok bhai for मैं further. एक बात कहना चाहता हूँ अविनाश जी, मैं लास्ट एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो आप लोग ने जो बात किया ना आज, इसके अंदर जो इसका एक कंक्लूजन अगर आप कंक्लूड करें तो अपने को कैसे सिल्वर की डिमांड और सिल्वर की सप्लाई इसको कैसे मैच करना है, इसके ऊपर अपने को आगे इसके इस सेशन के बाद मनन करना चाहिए नितिन सर के साथ में और लोग जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं इनको मिलके, और उसको कैसे जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए और कैसे उसको अपने को आगे बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। संजय भाई, मैंने पूरे पॉइंट्स बना लिए हैं। आज जो भी स्पीकर्स ने हमको सजेशन दिए और जो हम पिछले 6 महीने से जो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, हम जब भी अभी इसके ऊपर बैठ के करेंगे, पूरे चीजों को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करेंगे और आने वाले दिवाली के पहले हम खाली माइंड स्पीक पे बातें नहीं करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। दैट इज माय प्रॉमिस टू दिस फोरम। और इसीलिए इसको तो इस फोरम का आज जो अपना वेबिनार है उसका यूज होगा। इट इज 100% गोइंग टू हैपन। यस सर, थैंक यू सर। ऑलवेज संजय भाई। या थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अशोक भाई। अशोक भाई, looks like Ashok bhai is क्वेश्चन आप ले लीजिए तब तक के। ठीक है, तो I will just scroll because I was going through. There are hundreds of questions and suggestions. सर तो आप अगर से if you are going through तो आप ले लीजिए कोई questions अगर से ऐसे। अशोक भाई आ गए। अशोक भाई बैक। या अशोक भाई। I think गलती से वो मेरा फिंगर लग गया। I think ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहा ये। मैंने चैट के अंदर देखे जो क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं डिस्कशन में उनका जवाब कहीं ना कहीं हो चुका है। कोई जरूरी नहीं है मुझे उसको वापस रिपीट करने की। एक बात मैं समझ सकता हूँ कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर। अगर दीपक वोरा जी ने शुरू किया था 100 साल 150 साल पहले, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं से शुरू किया था। अगर किसी ने 20 साल पहले शुरू किया है तो कहीं ना कहीं से किया है, और आज भी तारीख में अगर कोई शुरू कर रहा है तो कहीं से शुरू कर सकता है। मुद्दे की बात यह है कि ये जो सिल्वर की एक इंडस्ट्री है इतनी बड़ी है। आप सोच लीजिए 7000 टन क्या होता है। आज 1000 टन भी नहीं होता है गोल्ड। टोटल कंजम्पशन 750 टन का गोल्ड का कंजम्पशन है। उसके सामने आपका 10 टाइम्स ज्यादा कंजम्पशन है सिल्वर का। तो आप पोटेंशियल देख लीजिए इस प्रोडक्ट में कितनी ज्यादा है। नंबर 1, जरा भी सिल्वर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए किसी तरह से। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो इतना वाइड वेरिएशन प्रोडक्ट इंडिया में बनने लग गया है। आज हम ट्रैवल करते हैं तो फॉरेन कंट्रीज के अंदर आप सिल्वर की एक एक आइटम देखेंगे तो दिमाग खराब हो जाता है। और यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ एक ब्रांड, हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि मुझे मजदूरी नहीं मिलती है, मुझे काम नहीं मिलता है, मुझे मेरा मेहनत का पैसा नहीं मिलता है। सर एक ब्रांड आती है अपने बाकी पूरी इंडस्ट्री की इमेज चेंज कर देती है। आज एपिसोड ने ब्रांडेड के फॉर्मेट में पूरी का पूरा लुक चेंज कर दिया, पूरी नीड ऑफ द कंज्यूमर को एड्रेस करने लग गए इन ऑर्गेनाइज वे। आज रविसा करके ब्रांड है, उन्होंने 20 साल पहले सिल्वर में एंटर हो गए, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी चेंज कर दी, खुद की मैन्युफैक्चरिंग डाल दी, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। एक चीज जो 1 किलो सिल्वर में अगर 40,000 में बाजार में बिक जाती है तो सर वही चीज वो बेच सकते हैं 80,000 और 1.5 लाख में। तो सर यही मुद्दे की बात है। वी नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट अ लार्जर पिक्चर। वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग डीपली, collectively, and the biggest factor that is the problem is that we are not maintaining our standards of quality. जब आप सबसे पहले स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी मेंटेन करने लग जाओगे
तो आपके तो 50% आपका काम वहीं पे वहीं खत्म हो जाता है। और स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी के लिए आज आपके पास हॉल मार्किंग का ऑप्शन अवेलेबल है। आप हॉल मार्किंग सेंटर्स जहां भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग है या होलसेल है, वहां पर हॉल मार्किंग सेंटर से आप अरेंजमेंट कराइए। आपके सारे सिल्वर प्रोडक्ट्स को आप हॉल मार्किंग करा के बेचना शुरू कर दीजिए। आपको सारा खर्चा हॉल मार्किंग का रिकवर हो जाएगा। आपको मिल जाएगा, आपके पास आज की तारीख में हॉल मार्किंग के जो रूल्स है वो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से बन सकते हैं। आप समझ लीजिए, आप अभी भी सिल्वर मैंडेटरी नहीं है हॉल मार्किंग के लिए, तो आपके पास सिल्वर में इतना पोटेंशियल है इसको सिस्टमेटिक तरीके से बेचने के लिए। और फिर आप उसके जो वोरा जी ने आइडियाज दिए हैं कि आप ब्रांड को बनाइए, आप ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, आपके इन स्टोर में कर सकते हैं। और ये ब्रांड क्रिएट करने से कितना चेंज आ जाता है, आप जिसने किया है वही इसका उसको समझ सकता है। मुझे याद है 2000 की साल में हमने सिल्वरीना नाम के एक ब्रांड को क्रिएट किया था हमारे पलाजियो के स्टोर के अंदर, और मैं पूरे इंडिया से बाई करता था और फॉरेन से बहुत ज़्यादा बाई करता था। आई यूज्ड टू बाई फ्रॉम इटली, और इंडिया में कहीं नहीं मिलता था वो टाइप का सिल्वर प्रोडक्ट्स हम बेचते थे वहाँ पर। एंड आई वुड गेट मोर देन 100%, 200% प्रॉफिटेबिलिटी इन सच गुड्स। तो पोटेंशियल 20 years ago was अगर वो था, तो आज की तारीख में तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आई थिंक वी नीड टू लुक एट अ बिगर पिक्चर, वी नीड टू लुक एट टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ MSME। इतना फंटास्टिक तरीके से प्रशांत ने समझाया है कि ये आप हर एक व्यक्ति को रजिस्टर करना चाहिए MSME के अंदर। आप रजिस्टर कर लीजिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या आगे जाके करना है। कोई खर्चा नहीं है, जीरो कॉस्ट है, जस्ट रजिस्टर योर सेल्फ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है और अपने आप सब सीख जाओगे आप। हर एक ज्वेलर 90% ज्वेलरी इंडस्ट्री के लोग इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। आपको उसके एडवांटेजेस का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा कि सर ये जो वेबिनार्स हैं, ये हमारा 1.5 घंटा जाता है बातचीत के अंदर। इसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत है, बहुत लोगों की सोच लगती है। आज अगर हमने एक 6 आदमी का पैनल बनाया आज की तारीख में, तो उसकी भी हफ्ते भर से 10 दिन से प्लानिंग ये वो। तो सर इसकी भी एक आई मस्ट गिव क्रेडिट टू एवरी सिंगल मेंबर ऑफ द पैनल ओवर हियर, संजय अग्रवाल जी, नितिन खंडेलवाल जी, मिस्टर वोरा, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर राहुल मेहता, Mr. Jambad, and finally Avinash Gupta ji for giving us a wonderful time. Avinash ji, this was your first webinar you did after doing 54 webinars that you managed from behind the scenes and also from the sides. But I think it was a very interesting part. And so I thank you all for a wonderful session. Sir, next week on Sunday, 28th of May, we have another one very interesting webinar on the subject is creating family harmony through family constitutions to build strong businesses. अपने व्यापार को बनाने के लिए आपके फैमिली को अच्छी तरह से हार्मोनाइज रखिए, और उस हार्मनी को बनाने के लिए फैमिली के बिजनेस एग्रीमेंट्स बनाइए। और उस एग्रीमेंट्स के बारे में चर्चा करने के लिए वी हैव अ वेरी एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट, मिस्टर सुनील शाह, who is going to come to us next Sunday at 2 p.m. So let's all get back for a very interesting session, and thank you very much for all the lovely ideas and lovely thoughts that have been exchanged today. All the very best. Have a wonderful day. Thank you, Ashok Bhai, for inspiring me to moderate this session. Thank you very much. I hope you'll do many more. Thank you. Thank you, everybody. Thank you all. Thank you, Avinash ji. Thank you, Avinash ji. Thank you, everyone. Thank you.